वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। आज हम कुछ अलग तरीका सोचा हो पढ़ाने का। क्या है, एनसीईआरटी के जैसे मान लीजिए लिविंग वर्ड हो गया, बायोलॉजिकल का स्पीकर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जो भी है, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। ये मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज को कवर करूंगा। और ये जब हमारा खत्म होगा तो हम क्वेश्चंस पे आएंगे और लास्ट के 10-15 दिन हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सोनॉमी की स्टडी कंसिडर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solesum tuberosum, potato, Panthera leo. All these three named indica, tuberosum, leo represent a specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum, Panthera are the genera and represent the another higher level or taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms, but having morphological similarities. For example, Panthera have another specific epithet called tigris and solanum, including species like Nirgam and Melogena. ठीक है, जैसे ये स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। अब स्पीसीज स्पीसीज को जब हम कंबाइन करेंगे, मोस्ट देखिए सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी होगी वो स्पीसीज में पाई जाएगी। लेकिन उसके बाद सिमिलैरिटी किसके में पाई जाएगी? जीनस। तो कुछ स्पीसीज को रिलेट करके जो एक में आ जाए उसको जीनस कहते हैं। तो जीनस देखिए कंप्रोमाइज comprises of comprises of group of related species which has more character in common in comparison to species and other genera. We can say the genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but belong to the genus Solanum, lion, leopard. With several common features. Are all species of the genera Panthera, the genus differ from the another genus Felis cats. ठीक है, देखिए पेंथेरा में टाइगर आ गया, पेंथेरा में लेपर्ड आ गया, पेंथेरा में लायन आ गया। ये पेंथेरा क्या है? देखिए पेंथेरा क्या है? एक जीनस है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आएगा? टाइगर का स्पीसीज, पैरेडस का, लियो का। ठीक है, ये बताया है। अब देखिए जो जीनस को कंबाइन करके बनाएंगे तो तब क्या बनेगा? फैमिली। इन नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarity as compared to genus and species. Family are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plant, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Dhatura, are placed in family Solanaceae. देखिए तीन जेनरा है, सोलेनम, पेटोनिया और धातुरा, एक फैमिली में होता है सोलेनेसी। एवं एनिमल, अब एनिमल में देखिए जेनस पेंथेरा था, कंप्रोमाइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जेनस फेलिस। देखिए पेंथेरा और फेलिस अब एक साथ कंबाइन होके एक फैमिली बनाएंगे, क्या? फेलिडी। ये फेलिडी फैमिली है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड some similarity and some differences as well. They are separated into different family, Felidae and Canidae. ठीक है, अब देखिए फैमिली को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्डर। ठीक है, यू हैव सीन अर्लियर दैट categories like species, genus and family based on the number of similar character. Generally order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate और बहुत कम character। ठीक है, order being a higher category is an assemblage of family which exhibit few similar character. The similar character are less number as compared to different genera included in family. Plant family like Colvonolaceae, Solanaceae included in the order Polygonaceae। अब देखिए यहाँ पे Solanaceae जो फैमिली ऊपर था इसमें क्लास में या फैमिली में, वो अब किस में आ जाएगा? कोलोनोसी और सोलोनोसी एक ऑर्डर में आएगा जिसको पॉलीमोनोलिस कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फेलिडी एंड कैनिडी। देखिए फेलिडी में कौन कौन आ जाता है? पेंथेरा की फैमिली और कैट की फैमिली फेलिस। ये फेलिडी में आ रही थी। कैनेडी में क्या आता है? डॉग की फैमिली। तो डॉग और कैट, लेपर्ड ये सब एक में आ जाएंगे और एक ऑर्डर में क्या होगा? कार्निवोरा। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर कंबाइन होकर क्या बनेगा? क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल प्राइमेटा कंप्राइज मंकी, जीवन, गोरिल्ला based in the class Mammalia along with the order Carnivora, कार्निवोरा के ऑर्डर के साथ। ठीक है, मैमिलिया में दोनों ये प्लेट होता है। ठीक है, इंक्लूडेड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग, क्लास लाइक मैमिलिया इंक्लूड अदर। ठीक है, अब देखिए फाइलम। फाइलम क्या है? क्लास को रिलेटेड है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स इंक्लूड हायर कैटेगरी फैमिली।
All these based on the common feature like presence of notochord and dorsal hollow nerve cord are included in phylum Chordata. In case plant, classes with few similar character are designed to be higher category division. अब देखिए, अब किंगडम आ जाएगा, ठीक है। All animal belonging to various phyla are assigned to be the higher category kingdom in Melia system of classification. The kingdom Plantae on the other hand, it distinct all comprises all plant for various, ये सारी चीजें। अब किंगडम लास्ट कैटेगरी। अब ये कैटेगरी आपको स्पीसीज, जेनस, ये सब याद रखना। स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। ये इस ऑर्डर में। अब ये चार्ट बहुत बार पूछा गया, बहुत बार इस पे आया। क्या है? मैन हाउस। देखिए इसमें बहुत कमी होगी। मैंगो फेरा है, वीट, ये मैंगी फेरा इंडिका, ट्रिटिकम, मैंगी फेरा, ट्रिटिकम, जेनस फैमिली, एनाकार्डियेसी पोएल्स, ठीक है। इसका ऑर्डर सेपेंडिल्स, मैंगो का है, इसका पोएल्स, ठीक है। ये डाइकोटिलेडन में आता है, ये मोनोकोटिलेडन, दोनों एंजियोस्पर्म। उसका मुस्केडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, होमोसेपियन, होमो होमिनिडी, प्रिमेटा, मैमिलिया, कॉर्डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट पेजेस आपको बताते हैं। हेलो गाइस, अब देखिए, अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यहीं पे लगता है, क्योंकि यहाँ से अभी क्वेश्चन पूरा तरीके बन गया है मैक्सिमम, लेकिन अभी पूरा नहीं बना है। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। वायरस, वायरॉइड्स, पेरियंस एंड लाइकेंस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो mention of lichen and acellular organism like virus, viroids, prions, ठीक है। These are being introduced here. All of us who have suffered from the ill effect of the common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place classification since they are not considered truly living. If we understand the living as those organisms that have a cell structure, the virus are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline outside the living cells, ठीक है। अब ये देखिए, पहला टोबैको मोजाइक वायरस, दूसरा बैक्टीरियोफाजस, ठीक है। बैक्टीरियोफाजस में हेड, देखिए हेड, पोलर, स्ट्रेन, टेल फाइबर, कैप्सिड, आरएनए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, वंस once they infect a cell, they take over a machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? Virus mean venom or poisonous fluid. Dimitri Ivanovsky, 1892, recognized certain microbe as a casual organism of mosaic disease of tobacco, ठीक है। मोजाइक डिसीज पे इन्होंने इसका वो स्टडी किया, मैंने पता पाया, ठीक है। These were found to be smaller than bacteria, देखिए ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है वायरस। तो वो जब टोबैको मोजाइक वायरस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो पास हो जा रहा था, तो ये बहुत ही अचंभित हो गए, बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से भी पास हो गया, ठीक है। देखिए दूसरे साइंटिस्ट एम डब्ल्यू बेर्जिनेट, 1898, demonstrated that the exalt of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and named a new pathogen virus. Uh, are called fluid contagionium vivium fluid, infectious living fluid। और देखिए डब्ल्यू एम स्टैनले showed that the virus could be crystallized and crystal consist of largely of protein. They are inert outside the specific host cell. वायरस आर obligate parasite, ठीक है। वायरस obligate parasite है। अब देखिए, in addition to protein, virus also contain a genetic material that could be either RNA or DNA, ठीक है। दोनों नहीं होगा, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक होगा, ठीक है। नो वायरस कंटेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई वायरस ऐसा नहीं है जो दोनों आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक में, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। A virus is a nucleoprotein and a genetic material is infectious, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो इन्फेक्ट होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंड, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करे वो सिंगल स्टैंड आरएनए होते हैं, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल सिंगल या डबल, कुछ भी आरएनए हो सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेजेस, देखिए बैक्टीरियोफेजेस लग रहा है बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है, ठीक है। नाम से बैक्टीरिया लग रहा है, लेकिन वो एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस दैट infect the bacteria are usually double stranded DNA, ठीक है। The protein coat आजकल capsid made up of a small subunit capsomere the protect the nucleic acid, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन द हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है. वायरस कॉज डिसीज लाइक मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, herpes and influenza. Important. It's in human is also caused by virus. In plants, symptoms such as mosaic formation, leaf swelling, curling, yellowing, green claving, darkening, stunted growth. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉराइड्स. ठीक है. इन 1971 टीओ डेनर, साइंटिस्ट याद रखिएगा, साइंटिस्ट भी पूछ देता है वो, ठीक है. डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी ये स्मॉल थे, एंड कॉस्ट पोटैटो स्पिंडल ट्यूब डिसीज, ठीक है. इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ठीक है. इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम वॉराइड. द आरएनए ऑफ द वॉराइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है. ये लो मॉलिक्यूलर वेट रहते थे, ये याद रखिएगा. प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन, प्रियॉन्स दूसरा है, ठीक है. Cause infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar to the size of the virus. ठीक है. देखिए, वायरस क्या थे, सबसे बड़ा क्या है वायरस, ठीक है. इसके बराबरी में क्या है प्रियॉन्स, और सबसे छोटा क्या है वायरस. तो देखिए, अगर कोई पूछ देगा प्रियॉन्स आर सेम साइज एज वायरस, तो ये सही है, असर्शन रीजन अगर इस टाइप में बना दे तो. अगर बोलेगा प्रियॉन्स से वायरस छोटा होता है कि बड़ा, तो छोटा होता है क्या वायरस. तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है. मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोविन स्पॉन्जियोसम एनसाइक्लोपैथी, ठीक है. कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज, ठीक है. एनालोगस टू सीआर जेकोमोनान जो भी है. देखिए, लाइकेंस पढ़ लेते हैं. लाइकेंस किसका एसोसिएशन होता है, फंजाई एंड अलगाई, ठीक है. लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक, मतलब दोनों पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है. एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई. द अलगी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियन एंड द फंगल component is known as mycobiome, which are autotrophic and heterotrophic respectively. algae देखिए, algae क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फॉर फंजाई. फंजाई क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, रहने खाने का व्यवस्था करता है. एब्जॉर्ब मिनरल, खाना लाता है, ठीक है. तो पापा कौन है, फंजाई. मम्मी कौन है, अलगी. खाना कौन बनाता है, अलगी. खाना लाता कौन है, पापा. एंड वाटर. सो क्लोज देयर एसोसिएशन, दैट्स ऑल आई कैन, ये सारी, ठीक है. थैंक यू गाइस. अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट पेजेस. ठीक. हेलो गाइस, देखिए, लीवर वोट्स. द लीवर वोट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, ये प्लांट किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं. लीवर वोट ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, barks of tree, deep in woods. The plant body of the liver, which is thyroid, Mercansia. The thallus is dorsally-ventrally and closely appressed to substrate. The leafy member have a tiny leaf-like appendage in two row of stem-like structure. ठीक है. Asexual reproduction in liver would take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamete. Single gamma. Gamete is a green multicellular asexual bud which developed in a small receptacle called gamma cup located on thalli. The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individual. ठीक है. During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or different thalli. ठीक है. They are saprophytic and differentiated into foot, seta and capsule. After meiosis, spore produced within a capsule. The spore germinate to form three living gametophyte. ठीक है. Mosses. The predominant stage of the life cycle of mosses is gametophyte, which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develop directly from the spores. It is crypsing green branch and frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which developed from the secondary protonema as a lateral part. They consist of the upright cylinder axis and bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. The stage bear the sex organ. देखिए, लीफी स्टेज की बात कर रहा है जो सेक्स ऑर्गन बियर करता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग in secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organ Entheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote developed into sporophyte consisting of foot, seta and capsule. The sporophyte in moss is more important. The sporophyte in moss is more elaborate than that of liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The moss have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of Funaria polytrichum sphagnum. ठीक है. देखिए, टेरिडोफाइटा.
टेरिडोफाइटा भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। द टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्स, स्टेल्स एंड फॉन्स। टेरिडोफाइटा आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बिल्डर, ठीक है। They are frequently grown as ornaments. Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to process vascular tissue, xylem and phloem. You shall study more about this tissue. The pteridophyta found, देखिए ये भी cool, damp and sandy place. एक important line यहाँ पे छूट गया है, ये फर्स्ट टाइम जी वेस्कुलर प्लांट कैरी करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और ये ब्रायोफाइटा के भी कैरेक्टर ले आते हैं साथ में, जो कूल डैम्प एंड साइड इफेक्ट ब्रायोफाइटा को चाहिए था, उसको भी चाहिए होता है, ठीक है। You may recall that Bryophyta, the dominant phase of the life cycle is gametophyte. However, in Pteridophyta, the main plant body of the sporophyte is differentiated into two roots, stem, and leaves. The organ process well differentiated vascular tissue. The leaf of the Pteridophyte small होते हैं, जिसको microphytes कहते हैं. Having senescella. Large भी होते हैं, जिसको ferns कहते हैं, ठीक है, macrophytes. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendage called sporophytes. Okay. In some cases, sporophyte may form distinct, देखिए, in some cases, probably the sporangia bear spores, meiosis spores mother cell. The spores germinate and give rise to inconspicuous small plus multicellular, जिसको क्या बोलेंगे, prothallus. Free living, mostly photosynthesis thalloid called prothallus. The gametophyte require cool, damp and shady places, ठीक है। Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, the spread of the living pteridophyte is limited, ठीक है, restricted to the narrow geographical region. The gametophyte bear male and female sex organ, Antheridia and Archegonia, respectively. Water is required for the transfer of enterozoid. The male gametes released from the Antheridia to the mouth of Archegonium. Fusion of male gametes with egg present in the Archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is a dominant phase of decay. स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट है, जबकि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था। इसमें क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। इन मेजोरिटी, ठीक है, ये प्लांट किंगडम जितना है ना, इसको आप रिलेट करके पढ़िए। जब आप रिलेट करेंगे ना, ब्रायोफाइट में क्या था, ग्रामेटोफाइट था, इसमें क्या है, स्पोरोफाइट था। ब्रायोफाइट में मस्कुलर टिश्यू डेवलप थे, नहीं थे, इसमें क्या है, डेवलप्ड है। वही सारी चीजें, केवल वो in majority of the pteridophyte, the spores are similar kind. With some plant homosporous, Janera senescella and Salvinia, इसमें heterosporous होता है, ठीक है। ये बहुत कम दो ही में पाए जाते हैं और लगभग में होमोस्पोरस होता है, ठीक है। देखिए, द मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन द प्लांट आर रिटेन इन द प्लांट, ये सारी चीजें। अब इसका एग्जांपल याद है, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सेनेसिनेला, सेपनोप्सिडा, स्क्विस्टियम एंड टेरोप्सिडा, डायोप्टेरिस, टेरिस, एडिटियम, ठीक है। अब देखिए गाइस, जिम्नोस्पर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म नेकेड प्लांट सीडेड, इनका जो ओव्यूल रहता है ना, वो ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है, ठीक है, एक्सपोज रहता है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड। Gymnosperm include middle-sized tree to tall tree. One of the gymnosperm, the giant redwood sequoia, one of the tallest tree species. The root are generally taproot. Root in some genera is a fungal association called mycorrhiza, pinus में, while in some cycas में specialized root caroloid root होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। The stem is unbranched, cycas में branch, pinus serratus. The leaf may be simple or compound. In cycas, the pinnate leaf persists for few years. The leaf of the gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity, wind. In conifers, needle-like leaf reduce the surface area. The thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. ठीक है? देखिए, जिम्नोस्पर्म are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. The two kind of spores produced within the sporangia are borne on the sporophyll, which are arranged spirally along to form a lax or compact strobili. The strobili bearing microsporophyll, microsporangia and called microsporogenate or male sporangia, ठीक है। अब साइकस एंड पाइनस में मेन डिफरेंसेस जैसे देखिए, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, किसमें होता है, पाइनस में। डिफरेंट ट्री किसमें, साइकस में, ठीक है। यही बस यही सब क्वेश्चन से राइज करता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, मैंने 3 चैप्टर का बनाया है। अब देखते हैं आपको कितना पसंद आता है, कुछ सजेशन दीजिए कि ऐसे पढ़ाइए, वैसे करिए, इस तरीके से चैप्टर पढ़ाइए, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, कीप गोइंग, डू वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट।